Greetings to all dear students. I hope you'll be hale and hearty at your home. Today I'm going to pick up the chapter from writing skill advertisement writing. Here in this video I will discuss the types of advertisement, format of advertisement and marketing scheme of advertisement writing. So let's begin with the definition of advertisement. Know what is advertisement. Advertisement is the announcement or information for people shown with a view to influence them. एडवर्टीजमेंट एक अनाउंसमेंट होता है या एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू हम लोग विजुलाइज करते हैं और लोगों को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं. इट इज़ अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. एक ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है दैट एम्स टू प्रमोट और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, आइडिया और सर्विस. ये किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी आइडिया या सर्विस के बारे में उसके प्रमोशन के लिए किया जाता है. इट रीचेज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल थ्रू प्रिंट एंड टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा. और ये प्रिंट मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू या रेडियो के थ्रू एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक ये जो है एक्सेस करता है, लोगों तक पहुंचता है. और इसमें बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेज, गवर्नमेंट और कमर्शियल जितने भी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन जितने होते हैं, दे यूज टू do the advertisement to sell their products. In the class 12 CBSE examination, choices are given there to attempt any one of the question out of these question which is written here. Advertisement and notices. There is a choice between the notice and advertisement, and sometime invitations are also given. Writing formal invitation and informal invitation and its replies also. It comes in 3 marks, and in the question paper we have short composition type questions like advertisement and notice, invitation, reply of invitation. And if I will tell you the long composition, in long composition we write the letter writing. In class 12th there is a business letter, letter to the editor, and application also in the school purposes applications are also there. And if I tell you the very long composition, then article and report writing comes in long composition. So we have a variety of writing skill. It is categorized in 3 parts: short composition, long composition and very long composition. Short composition, that is of 3 marks, and there is a invitation and its replies and advertisement. And if I tell you the long composition, then there is a letter writing, it comes off 5 marks. And if I tell you the very long composition, then article and report writing is there, and it also comes off 5 marks. Now I will tell you the breakup of marks in advertisement. So student, you will get 1 mark on format, 1 mark on content and 1 mark on expression. The total is 3 marks. If I tell you the types of advertisement, there are 2 types of advertisement: classified advertisement and non-classified advertisement, which is also known as display advertisement or commercial advertisement. So non-classified advertisement is known as display advertisement or commercial advertisement. Let's discuss the classified advertisement. Very first I will tell you that what is classified advertisement. A classified advertisement is written for publishing in a newspaper or a magazine. जो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट होता है वो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में लिखा जाता है, यूजुअली टू सेल और बाय समथिंग, किसी चीज़ को बेचने के लिए या खरीदने के लिए. दिस इज ऑल्सो पुट टू फाइंड और ऑफर जॉब. और ये एडवर्टीजमेंट कहीं जॉब पर कोई रिक्रूटमेंट करना है, जॉब में किसी को हायर करना है, तो उसके लिए भी लिखा जाता है. और या अगर आप जॉब सीकर हैं, आप जॉब चाहते हैं, देन यू कैन ऑल्सो राइट क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट. द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट. अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं. अ क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज़ लुकिंग फॉर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन इन हिज ऑर्गेनाइजेशन और टू सेल और परचेज और रेंट एनी प्रॉपर्टी और फॉर मेनी अदर पर्पजेज. क्लासीफाइड जो एडवर्टीजमेंट होता है ये लिखा जाता है या इसको प्रिंट कराया जाता है इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन बाय एन एम्प्लॉयर. कोई एम्प्लॉयर के थ्रू या किसी ओनर के थ्रू ये जो है
एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है। एंड ही लुक फॉर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, वो जो है किसी को हायर करना चाहता है फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन और फॉर हिज इंस्टीट्यूशन, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए वो किसी को हायर करना चाहता है, या जो ओनर है वो अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है या परचेज करना चाहता है कोई, या वो अपने चीज़ों को रेंट पर देना चाहता है। तो इन सारे पर्पजेज़ के लिए जो है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखा जाता है, जो कि न्यूज़पेपर में प्रिंट किया जाता है। डिफरेंट हेडिंग एंड पर्पज ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या उसमें एडवर्टीजमेंट कराए जाते हैं। तो नंबर 1 है सिचुएशन वैकेंट। जैसे क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर है, जब उसको किसी सर्विस के लिए उसको किसी पर्सन को हायर करना है, सो ही विल गो थ्रू द सिचुएशन वैकेंट। दिस एडवर्टीजमेंट ऑफ सिचुएशन वैकेंट इज रिटन बाय एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर इसको लिखता है, हु नीड्स 1 और मोर एम्प्लॉइज फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक या एक से ज़्यादा एम्प्लॉइज की नीड होती है। सेकेंड है सिचुएशन वांटेड, अ जॉब सीकर हु नीड्स अ जॉब राइट्स सच काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। एक जॉब सीकर जिसको जॉब की नीड होती है वो सिचुएशन वांटेड कॉलम में जो है अपने लिए वो अपने क्वालिफिकेशन को लिख करके, अपने क्वालिटीज़ को लिख करके वो सिचुएशन वांटेड अंडर हेडिंग वो जो है अपने बारे में लिखता है। फॉर सेल एंड परचेज, दिस एडवर्टीजमेंट इज रिटन टू सेल और परचेज द प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टी, एसेट्स, ऑफिस गुड्स एक्सेट्रा। और फॉर सेल एंड पर्पज़ ये भी एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का टाइप है। इस एडवर्टीजमेंट के अंडर में हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को, या प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, किसी एसेट्स को, कोई जो फर्नीचर्स होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, जब उसको हम सेल करेंगे तो उसके लिए भी हम फॉर सेल या परचेज़ कॉलम के थ्रू जो है जा कर के उसको लिखते हैं। नेक्स्ट है ट्रेवल्स एंड टूर्स। दीज आर रिटन बाई ट्रेवल एजेंसीज, इसको ट्रेवल एजेंसीज लिखती हैं जो पैकेज देते हैं कहीं पर टूर पर जाने का और वहाँ पर फूडिंग, लॉजिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ है मिसिंग, दिस एडवर्टीजमेंट रिप्रेजेंट्स एनी मिसिंग ऑब्जेक्ट और मिसिंग पर्सन और मिसिंग पेट एक्सेट्रा। इट गिव्स डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर वन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई लॉस्ट हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, कोई पर्सन लॉस्ट हुआ है तो उसके बारे में बताते हैं, पेट या कोई एनिमल्स लॉस्ट हुआ है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। कभी कभी हमारे इंपॉर्टेंट क्रीडेंशियल्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कहीं पे लॉस्ट हो जाते हैं, तो वी राइट अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर एंड इट इज रिटन इन द कॉलम ऑफ मिसिंग। The next one is to let. This one is the sixth one, to let. This advertisement is written by property owners और प्रॉपर्टी मैनेजर्स हु लुक फॉर टेनेंट्स फॉर देयर प्रॉपर्टी। टू लेट जो है ये एडवर्टीजमेंट कोई ओनर लिखता है। टू लेट मीन्स जब हम किसी को किराए पर कोई चीज़ देते हैं तो वहाँ पे हम टू लेट की हेडिंग के अंडर में लिखते हैं, कोई इसे मैनेजर या कोई ओनर इसको लिखता है जो किसी टेनेंट को, किसी किराएदार को ढूंढता हुआ रहता है, अपने प्रॉपर्टी को वो रेंट पर देना चाहता है। सेवेंथ है अकोमोडेशन वांटेड, अगर किसी को किराए पर कोई शॉप चाहिए या जो है बैंक को कोई बिल्डिंग चाहिए तो वो जो है अकोमोडेशन वांटेड कॉलम के थ्रू जो है लिखता है। दिस इज रिटन बाय दोज हु आर लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर अकोमोडेशन, जिसको अकोमोडेशन के लिए कोई प्लेस चाहिए तो वो इसको लिखता है। And the next one is matrimonials. Matrimonials, this is written while looking for suitable bride and grooms. जब हम कोई ब्राइड जो है किसी सुटेबल ग्रूम्स को ढूंढना चाह रही है तो वो मैट्रिमोनियल्स कॉलम में लिखेगा, या कोई जो है ग्रूम ब्राइड को ढूंढ रहा है तो वो मैट्रिमोनियल कॉलम में जाके लिखेगा, वहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस के अंडर में हम इसको लिखते हैं। एंड इसके बाद भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कोई लैंग्वेज कोर्स कोई इंस्टीट्यूशन करा रहा है तो वो अपने लैंग्वेज कोर्स के बारे में बताएगा। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपने कोर्सेज़ के बारे में बताना चाहता है और एडमिशन के लिए वो एडवर्टीजमेंट करना चाहता है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी क्लासीफाइड में आएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज योर नेम देन यू हैव टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं देन यू नीड टू पब्लिश योर एड इन द न्यूज़पेपर। तो फॉर द चेंज ऑफ नेम वी ऑल्सो राइट इन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। एंड इफ़ यू रनिंग एनी हॉबी क्लासेस,
कोई हॉबी क्लास आप रन करते हैं, म्यूजिक या डांस की कोई क्लासेस रन करना चाहते हैं, तो फॉर दैट एडवर्टीजमेंट यू कैन गो थ्रू द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। टिप्स फॉर राइटिंग, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखना कैसे चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट, आपके लिए यही ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग, कैसे आप जो है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को आप लिखेंगे। पब्लिशिंग एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स रिक्वायर्स मनी और चार्जेस एज पर वर्ड एंड सो द इंफॉर्मेटिव क्रिस्पी एडवर्टीजमेंट कंसीडर्ड गुड। जैसे अगर आपको किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में अपने एडवर्टीजमेंट को प्रिंट कराना है तो वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं उसके वो पर वर्ड चार्ज किए जाते हैं, इसलिए जितना कम से कम लिखा जाए और जितना वो क्रिस्पी हो, जितना वो इंटरेस्टिंग हो, जितना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो, उतना ही आपके लिए वो बेनिफिशियल होता है। इसीलिए इस राइटिंग के लिए हमें कोई ग्रामर या सेंटेंसेस की, फुल सेंटेंसेस की नीड नहीं होती है। हमें ये देखना होता है कि हम कितने शॉर्ट, कितने ब्रीफ में अपने सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो टू लेंदी एंड वेग अनक्लियर टेक्स्ट विल कॉज पीपल टू स्किप योर एडवर्टीजमेंट। इसलिए हमें बहुत सारे वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने एडवर्टीजमेंट में, हमें बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लियर जो है अपने एडवर्टीजमेंट को रखना चाहिए। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या होगी, ड्रॉ अ बॉक्स विथ पेंसिल। सबसे पहले आप जो है एक बॉक्स बनाइए पेंसिल से। सेकेंड पॉइंट है इट शुड बिगिन विद क्लियर हेडिंग, वहाँ पे क्लियर हेडिंग होनी चाहिए इन बोल्ड और अपर केस। अपर केस मीन्स क्या होता है, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए और वो बोल्ड में लिखा होना चाहिए। जैसे कि फॉर सेल, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी होगी फॉर सेल। अगर आप रेंट पर कोई अपना मकान, कोई अपनी बिल्डिंग जो है या रूम्स रेंट पर आप दे रहे हैं तो देन यू शुड राइट टू लेट। एंड इफ़ यू आर हायरिंग एनी वन, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आपको किसी को आपको हायर करना है देन यू विल राइट द हेडिंग सिचुएशन वैकेंट। एंड इफ़ यू नीड अ जॉब, अगर आपको कोई जॉब की नीड है देन यू विल राइट द हेडिंग सिचुएशन वांटेड। तो जैसा आपको एडवर्टीजमेंट लिखना होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी हेडिंग आपको लिखनी होगी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टू बिगिन एन एडवर्टीजमेंट। किसी एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी हेडिंग को चूज करना, हेडिंग को लिखना। In classified advertisement you don't need any images or you don't need to draw any drawings। आपको कोई ड्राइंग की करने की ज़रूरत नहीं होती है। No images or designs are required। The language should be used according to the target audience। Words should be written in form of phrases। No need to write full sentences। अर्लियर ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको फुल सेंटेंसेस की नीड नहीं है, कोई ग्रामर की नीड नहीं है। यू कैन यूज़ द फ्रेज, आप खाली फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये टारगेट करना है कि जितने मतलब, क्योंकि न्यूज़पेपर जितने उसके रीडर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपका एडवर्टीजमेंट होगा। तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो कि सिंपल हो, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जिसको सब समझ सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो मैसेज कन्वे कर सकें। मेंटेन द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, और आपको वर्ड लिमिट भी दी गई होती है इस राइटिंग में, आपको 50 वर्ड्स के अंदर ही ये अपना इन्फॉर्मेशन जो है कन्वे करना होता है। 6 पॉइंट है ऑलवेज ऐड कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द एंड, ईदर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और बोथ। और आपको एड्रेस में या अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है या ईमेल आईडी देना है, या आप दोनों ही दे सकते हैं। इट इज़ जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, ऑल्दो ये क्वेश्चन में ही दिया होता है। इन केस द कॉन्टैक्ट डिटेल इज मिसिंग और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है तो यू कैन टेक इमेजिनरी नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप वहाँ पे कोई इमेजिनरी नेम या कोई रैंडम ऐसे कोई डिजिट 10 डिजिट नंबर आप लिख करके अपना मोबाइल नंबर, मतलब अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं। नोट, नेवर यूज योर पर्सनल डिटेल इन एनी प्लेस इन योर आंसर। कभी भी अपने पर्सनल डिटेल को मत शेयर करिए। लेटर राइटिंग में या एडवर्टीजमेंट राइटिंग में अपना पर्सनल नेम या पर्सनल नंबर ना लिखिए। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो आप कोई रैंडम ऐसे डिजिट आप लिख सकते हैं 10 डिजिट, और आप अपना पर्सनल वहाँ पे कोई भी डिटेल्स ना मेंशन करिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इन्फॉर्मेशन फॉर सम काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपको सिचुएशन वैकेंट लिखना है तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लिखना चाहिए। जैसे अगर आपको क्लासिफाइड लिखना है फॉर द सिचुएशन वैकेंट, अगर आप कोई सिचुएशन वैकेंट है उसके लिए अगर आप कोई लेटर लिखना है तो आपको क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं टू राइट देयर, वहाँ पर लिखने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है डेजिग्नेशन और पोस्ट। आपको सबसे पहले जिस जो जॉब के लिए आप जो है जो जॉब के लिए आप हायर करना चाहते हैं या जो आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि किस पोस्ट के लिए आपको चाहिए। यू हैव टू मेंशन द
नेम ऑफ पोस्ट और डेजिग्नेशन, जो डेजिग्नेशन या पोस्ट जो आपको चाहिए आप वो लिखेंगे. देन यू नीड टू राइट द नंबर ऑफ वैकेंसीज. फिर आपको वैकेंसीज कितनी, मतलब कितने लोगों को हायर करना है, आप नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखेंगे. क्वालिफिकेशन लिखेंगे, रिलेटेड क्वालिफिकेशन, उस जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, एंड अदर क्वालिटीज़. अगर कोई टेक्निकल क्वालिटीज़ आपको चाहिए उस जॉब के लिए, देन यू विल मेंशन द टेक्निकल क्वालिटीज़ ऑल्सो. देन यू विल ऑल्सो मेंशन द मीन्स जेंडर, इफ़ एनी पर्टिकुलर जेंडर यू रिक्वायर. जैसे कि रिसेप्शनिस्ट के लिए लोग फीमेल को प्रीफर करते हैं, तो इफ़ यू नीड एनी पर्टिकुलर जेंडर देन यू विल मेंशन द जेंडर ऑल्सो. एंड यू विल ऑल्सो मेंशन द पे स्केल. आप वहाँ पे पे स्केल भी वहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप कितना पे करेंगे. एंड वे ऑफ अप्लाइंग, मतलब किस माध्यम से जो है जो जॉब सीकर्स हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे. तो मोड ऑफ अप्लाइंग एंड हुम टू अप्लाई, किसको अप्लाई करना है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा. एंड टाइम लिमिट शुड ऑल्सो बी गिवन. टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन दैट शुड ऑल्सो बी रिटन. वहाँ पे वो भी मेंशन होना चाहिए कि क्या उसकी टाइम लिमिट है सबमिशन की, अप्लीकेशन सबमिशन की क्या टाइम लिमिट है. देन यू हैव टू एंड विद द कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो आपको लास्ट में लिखना होगा. तो विद दिस यू हैव टू कंप्लीट द सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट. नेक्स्ट सिचुएशन वांटेड. So for this you need to write the means your profile or designation or post. You have to write the qualification after that and experience. आपको qualification और experience लिखना होगा. Then you have to write about your age and sex, means your gender also. Then you have to write the nature of the job which you are seeking. जो आप जैसी जॉब चाहते हैं वो आप वहाँ पे लिखेंगे. You will also write the minimum salary एक्सेप्टेबल और सैलरी एक्सपेक्टेशन आपको अपनी लिखनी होगी. एंड अदर क्वालिटीज़, जो अगर आप और चीज़ें चाहते हैं, कोई अगर और एमिनिटीज़ आप चाहते हैं, देन यू विल मेंशन ऑल दोज amenities, all the facilities जो which you require there. Then at last you will write contact details. You will write your address, contact number, email ID. This thing is required in situation wanted. टू लेट, अगर आप किसी को किराए पे कोई चीज़ देना चाहते हैं, देन यू नीड टू राइट द टाइप ऑफ अकोमोडेशन. सबसे पहले आपको लिखना होगा अकोमोडेशन कैसा आप चाहते हैं. यू विल बिगिन विद द मीन्स विद द नेम ऑफ विद द नंबर ऑफ रूम्स एंड फ्लैट और हाउस, ये आपको वहाँ पे लिखना होगा. देन यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ फ्लोर्स उस हाउस में. अगर इफ़ यू आर सेलिंग द हाउस, इफ़ यू आर मीन्स गिविंग ऑन रेंट टू योर हाउस, देन यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ फ्लोर्स एंड रूम्स. आपको वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन करना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ अकोमोडेशन यू आर प्रोवाइडिंग. यू हैव टू राइट द साइज, सम टाइम फ्लोर, नंबर ऑफ रूम्स, एक्सेट्रा. And then you have to write the location also, that where that house is located, and what is the rent, per month rent or yearly rent क्या है, and what is the mode of taking the rent. rent का मतलब आप कैसे चाहते हैं, in the bank or you want to means give your room or house at lease पे आप देना चाहते हैं, तो वो सब आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा. and what kind of tenant you need to give, then you will mention the small family or teachers, bank employees. अगर ऐसा कोई preference है, then you can write also. It is not necessary to write these things. If you want to skip, you can skip it also. और आप इसको skip करना चाहते हैं, you can skip it also. आप इसको skip भी कर सकते हैं. It is not necessary to write. ये कोई necessary नहीं कि आपको लिखना ही लिखना है. नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन. जो ओनर है उसका जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस और ईमेल, इफ़ इट इज़, अगर है तो ईमेल आईडी, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर सेल. इफ़ यू वांट टू सेल एनी प्रॉपर्टी, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या क्या करेंगे, दैट इज़ written here. Then you will begin with the heading sale और purchase. वहाँ पे आप heading से start करेंगे, sale और purchase या available और wanted. अगर आप जो है कोई चीज़ अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, then you can also mention the heading available. अगर आपको वो चाहिए तो आप वहाँ पे wanted लिख सकते हैं. और then you will write the kind of property, जैसे फ्लैट आप सेल करना चाहते हैं, विला सेल करना चाहते हैं, प्लॉट सेल करना चाहते हैं या एग्रीकल्चर लैंड सेल करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर वो टाइप ऑफ अकोमोडेशन या टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वहाँ पर लिखेंगे.
एंड यू विल ब्रीफली डिस्क्राइब द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्लेस। उसका जो है थोड़ा सा फिजिकल डिस्क्रिप्शन कहिए कि किस लोकेशन पर है, और जो प्रॉपर्टी है you have to specify the size. If it is a house, then you have to mention the room and floors, कितने floors बने हुए हैं, you have to write the number of rooms. Then you have to also mention the fixtures and fittings, उसमें जो है फिक्चर्स और फिटिंग्स क्या क्या है, एंड यू हैव टू मीन्स राइट अबाउट द फर्नीचर्स, अगर कोई फर्नीचर्स हैं या वो वेल फर्निश्ड है कि नहीं, देन यू हैव टू राइट दैट। एंड यू हैव टू राइट ऑल्सो द प्राइस एक्सपेक्टेड, जो अगर जो प्राइस आपको चाहिए आप वो लिखेंगे वहाँ पर। देन यू हैव टू गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एट लास्ट, और आपको लास्ट में क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी फॉर सेल। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय और परचेज द प्रॉपर्टी, देन यू विल गो थ्रू द सेम हेडिंग्स। आपको ऐसे ही उसमें जो है वांटेड के लिए भी लिखना होगा। व्हीकल फॉर सेल, अगर आप कोई व्हीकल सेल करना चाहते हैं, देन यू नीड टू राइट द टाइप्स ऑफ व्हीकल, विच काइंड ऑफ व्हीकल यू आर सेलिंग, आप किस तरह का व्हीकल सेल कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू परचेज, तो यही हेडिंग रहेगी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। आप सबसे पहले व्हीकल टाइप्स लिखेंगे। देन यू हैव टू मेंशन द कलर और मॉडल, उसका कलर या मॉडल क्या है आप उसको मेंशन करेंगे। देन यू विल राइट द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड नेम, उसका ब्रांड नेम क्या है उसको आप मेंशन करेंगे। देन यू विल ऑल्सो मेंशन द कंडीशन एंड माइलेज, उसका कंडीशन या माइलेज क्या है। कंडीशन मतलब क्या होता है कि जैसे कितने किलोमीटर ड्रिवन है वो, कितना किलोमीटर वो राइड की गई है, अगर बाइक है तो कितने किलोमीटर राइड की गई है, और अगर कार है तो कितने किलोमीटर वो ड्राइव की गई है। देन यू हैव टू ऑल्सो मेंशन द माइलेज ऑल्सो, माइलेज आपको मेंशन करना होगा। इफ़ यू नीड टू मेंशन, देन यू कैन ऑल्सो मेंशन द फ्यूल टाइप ऑल्सो, ये भी उसी में आता है। फ्यूल टाइप में आप लिख सकते हैं कि डीजल है, पेट्रोल है, या CNG LPG क्या है वो, आप उसका फ्यूल टाइप भी लिख सकते हैं। देन यू हैव टू राइट द ओनर डिटेल्स। ओनर डिटेल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ओनर का नाम लिखना है। ओनर डिटेल्स में आपको बताना है कि वो कितने मतलब किस फर्स्ट हैंड है वो, या सेकंड हैंड है, या थर्ड हैंड है, कितने उसके ओनर्स हुए हैं। जैसे क्योंकि गाड़ियां जब रीसेल होती रहती हैं तो उसके नंबर ऑफ ओनर्स भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जब ओनर नंबर ऑफ ओनर इंक्रीज होते जाएंगे तो गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। इसीलिए आपको ओनर डिटेल भी मेंशन करना ज़रूरी होता है। देन यू नीड टू राइट द प्राइस एक्सपेक्टेड, जो प्राइस आप जितने में सेल करना चाहते हैं या आप परचेज करना चाहते हैं तो उसका प्राइस क्या होगा, यू हैव टू मेंशन दैट also, and at last you have to write the address और contact number, this is required। तो ये एक फ्लो है जो उसके थ्रू जो है आपको ये व्हीकल फॉर सेल जो है कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है लॉस्ट और फाउंड। अगर कोई चीज़ खो जाती है या आपको मिलती है तो उसमें क्या आपको करना है। तो इन केस ऑफ मिसिंग, आपको सबसे पहले वहाँ पर यू हैव टू बिगिन विद द मिसिंग। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है देन आपको हेडिंग लिखनी होगी लॉस्ट या मिसिंग। और फिर उसका अगर वो पर्सन है तो देन यू हैव टू डिस्क्राइब द, यू हैव टू गिव द फिजिकल डिस्क्रिप्शन। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ पर्सन, एज ऑफ पर्सन एंड इट्स जेंडर ऑल्सो, उसका जेंडर आप लिखेंगे, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, बिल्ट, थिन है या जो है वेल बिल्ट है, रोबस्ट है, टाइप ऑफ क्लॉथ्स ही वॉज वियरिंग एंड अदर आइडेंटिफाइंग फीचर्स, और कुछ अदर आइडेंटिफाइंग फीचर आपको लिखने होंगे। इफ़ इट इज़ एनिमल, अगर कोई पेट लॉस्ट हुआ है तो आप उसकी कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स देंगे। यू हैव टू राइट इट्स नेम, उसका नेम आप लिख सकते हैं, क्योंकि पेट जो है जनरली अपने नेम से, वो अपने नेम से जब बुलाए जाते हैं तो वो चले आते हैं, उनका नेम भी होता है, वो नेम से अपने आप को आइडेंटिफाइड करते हैं। और ब्रीड अगर उसकी है तो आप यू कैन राइट द ब्रीड नेम एंड कलर ऑफ फर और स्किन, उसके स्किन या उसके फर का क्या कलर है, यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट ऑल्सो। एंड उसके बाद वो कहाँ पर लॉस्ट हुआ था, देन यू हैव टू मेंशन द प्लेस आपको लिखना होगा। एंड व्हेन टाइम उसको मेंशन करना होगा कि किस समय वो खोया हुआ था, कब और कहाँ खोया हुआ था, मतलब व्हेन एंड वेयर आपको जो है प्लेस और टाइम दोनों मेंशन करना होगा। एंड यू हैव टू राइट द सम अमाउंट ऑफ मनी, रिवॉर्ड, कोई रिवॉर्ड या कोई मैसेज आपको लिखना होगा जिससे कोई भी जो है जो उसको पाएगा, जिससे वो मतलब वो ल्योर हो, कुछ अट्रैक्ट हो उसको ढूंढने के लिए। तो कुछ ऐसे आपको मतलब यू हैव टू गिव सम बेट, कुछ ऐसा बेट आपको देना होगा, कुछ ऐसा आपको वहाँ पर एंटाइस करना होगा, तो आपको कोई वहाँ रिवॉर्ड रखना होगा। देन यू हैव टू गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो सेम गोज़ विद फॉर फाउंड ऑल्सो। फाउंड के लिए भी यही होगा कि अगर मतलब आपको कोई चीज़ मिलती है देन यू विल राइट देयर फाउंड, हेडिंग आपकी होगी फाउंड। और उसके बाद आपको उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अकाउंट अपीयरेंस क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा। और फिर व्हेन एंड वेयर यू हैव फाउंड दैट। एंड फॉर रिवॉर्ड यू वॉन्ट राइट, आप रिवॉर्ड के लिए नहीं लिखेंगे,
अदरवाइज ये शो करता है कि आप बहुत ही ग्रीडी हैं। तो आपको रिवॉर्ड के लिए नहीं लिखना है, यू विल मेंशन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दिस वे यू विल एंड योर मीन्स फाउंड एडवर्टीजमेंट। देन एडमिशन नोटिस, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं तो आपको एडमिशन नोटिस अगर देना है, एडवर्टीजमेंट लिखना है एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे और उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है उसको आप मेंशन करेंगे। यू विल मेंशन द कोर्स ऑफर्ड, कौन सा कोर्स आप वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में चलाते हैं, आप उस अपने कोर्स के बारे में लिखेंगे। देन यू विल राइट ड्यूरेशन, आप वहाँ पे ड्यूरेशन क्या उसकी ड्यूरेशन है वो आप लिखेंगे। यू विल ऑल्सो स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका क्या है जिसमें जो लोग कैंडिडेट उस कोर्स को परफॉर्म कर सकते हैं, उस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। यू विल ऑल्सो लिस्ट द फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ विच यू प्रोवाइड, जो आप अपनी एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ देते हैं वो उसके बारे में आप लिखेंगे। देन यू विल मेंशन द फीस स्ट्रक्चर, आप फीस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं अगर उसमें कोई ऑफ़र आप देते हैं क्वार्टरली पे करने पे या हाफ ईयरली या एनुअली एक बार में डाउन पेमेंट करने पर, अगर आप कोई ऑफ़र देते हैं देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट वन। एंड देन एट लास्ट यू हैव टू कोड द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर उसका कोई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन का कोई लास्ट डेट है देन यू विल ऑल्सो कोड दैट, आप उसको भी वहाँ पे कोड कर देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट यू विल राइट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दैट इंक्लूड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस आता है। नेक्स्ट इज ट्रेवल्स एंड टूर्स। ट्रेवल्स एंड टूर्स में आपको क्या आता है कि यू हैव टू मेंशन योर मीन्स ट्रैवल एजेंसी, नेम ऑफ ट्रैवल एजेंसी आपको मेंशन करना होता है। देन यू स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन, किस डेस्टिनेशन पे आप ले जाते हैं और उसके क्या क्या पैकेज हैं, जैसे आप हिमाचल ले जाते हैं, गोवा ले जाते हैं, साउथ इंडिया ले जाते हैं, तो उसकी जो अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं आप वहाँ पे डेस्टिनेशन और उनके क्या प्राइजेज़ हैं, क्या पैकेज हैं वो आप वहाँ पे लिखेंगे। एंड व्हाट इज़ द ड्यूरेशन, आप ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम लगेगा उस डेस्टिनेशन को ले जाने में और ले आने में, उस डेस्टिनेशन को विजिट कराने में कितना आप टाइम लेते हैं, यू विल ऑल्सो मैंसन दैट। एंड व्हाट काइंड ऑफ पैकेज, व्हाट काइंड ऑफ सप्लाई ऑफ डिटेल्स में आप वहाँ पे बताएंगे व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू प्रोवाइड देयर, जैसे फूड हुआ, बोर्डिंग एंड लॉजिंग हुआ एंड साइट सीइंग हुआ। अगर वहाँ पे आप कोई म्यूजिक या डांस के शो भी प्रोवाइड करते हैं तो वो आप वहाँ पर लिखेंगे, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। देन यू विल गिव द एस्टिमेटेड कॉस्ट, और फिर उसका कॉस्ट क्या है, ऑफर क्या है जो आप देते हैं, इन स्पेशल डिस्काउंट्स क्या हैं, उन जैसे समर सीजन में कोई डिस्काउंट अगर आप देते हैं तो वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। एट लास्ट यू विल राइट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दिस वे यू विल कंप्लीट ट्रेवल्स एंड टूर्स। Next is matrimonials. You have to begin with the heading wanted groom or wanted bride, or you can also write only wanted, or you can write alliance, you can also write proposal invited, ये सारे हेडिंग आप कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन यू हैव टू राइट द मीन्स एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शंस, आप ये सब चीज़ों को लिख सकते हैं। एंड बॉडी बिल्ड, बॉडी कैसी है, स्लिम, टॉल, रोबस्ट है ना, किसे है वो आपको लिखना होगा। एंड देन यू हैव टू राइट एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इफ़ यू हैव, आपकी जो एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में आप लिखेंगे। जॉब स्टेटस लिखेंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ सैलरी यू आर लिफ्टिंग, आपकी सैलरी क्या है वो आप लिखेंगे वहाँ पर। देन यू विल मेंशन योर कास्ट, सब कास्ट एंड रिलीजन ऑल्सो, फिर वहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे। एट लास्ट यू विल राइट योर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। एड्रेस यू विल राइट विद द मीन्स पिन कोड नंबर, जो पोस्ट बॉक्स नंबर होता है या पिन कोड नंबर होता है वो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे इन योर एड्रेस। नेक्स्ट इज नॉन क्लासिफाइड। अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ये डिस्कस किया, अभी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट का सेकंड टाइप है। एडवर्टीजमेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लासिफाइड और दूसरा क्या होता है, नॉन क्लासिफाइड। नॉन क्लासिफाइड को हम लोग डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, जो डिस्प्ले बोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, वो आपका नॉन क्लासिफाइड में आता है। या कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। अक्सर ये जो है बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सेलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा एक उसमें होती है, और जो क्लासिफाइड होते हैं वो तो एक छोटे पैरामीटर्स पे होते हैं, जैसे कहीं पर छोटा कोई इंस्टीट्यूशन है तो वही पर्टिकुलरली प्लेस के लिए होगा। लेकिन अगर कोई बिग इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई क्या नाम है, कोई बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक लार्ज स्केल में सेल होते हैं, तो उनके लिए हम लोग को नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखना होता है, जो कि कॉमर्शियल होते हैं। तो कॉमर्शियल जो एडवर्टीजमेंट होते हैं दे आर ड्राफ्टेड फॉर कॉमर्शियल पर्पज़, ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ड्राफ्ट किए जाते हैं। दीज एडवर्टीजमेंट्स आर गिवन टू अट्रैक्ट द
अटेंशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स, ये एक बड़े मतलब एक ज़्यादा संख्या के जो रीडर्स होते हैं उनके अटेंशन को ड्रॉ करते हैं। एंड दीज एडवर्टीजमेंट्स आर लेंदियर एंड कवर बिगर स्पेस, और ये काफ़ी बड़ा स्पेस लेते हैं और काफ़ी लेंदी होते हैं। एंड दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो कंपेरेटिवली टू क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट, दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो, ये एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर मोर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। मेन फीचर ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, दीज आर डिज़ाइंड फॉर कॉमर्शियल पर्पज़, ये जो इनके अगर मेन फीचर्स बताया जाए, मेन पॉइंट्स बताए जाएँ कि कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट का पर्पज़ क्या होता है, तो उनका पर्पज़ ये होता है कि ये कॉमर्शियल एक मतलब इकोनॉमी को या जो है अर्निंग के लिए, मनी अर्निंग के लिए ये किए जाते हैं एडवर्टीजमेंट। दीज टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स कंटेन और कवर मोर स्पेस, ये बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं और काफ़ी बड़े में ये मतलब विजुलाइज किए जाते हैं। दीज आर विजुअली अट्रैक्टिव, ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। डिज़ाइंड विद कैची फ्रेजेज एंड स्लोगन्स, और कैची फ्रेजेज और स्लोगन्स का इसके लिए यूज़ किया जाता है ना। जैसे अब एक छोटा सा सोप है, जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जो है, उसमें उसका स्लोगन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसे कुछ न कुछ स्लोगन्स या कुछ ऐसे फ्रेजेस वहाँ पर दिए होते हैं। दीज आर रिटन इन वेरिंग फॉन्ट साइज और शेप, इस अलग अलग फॉन्ट साइज और शेप का यूज़ किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कलरफुल होता है, काफ़ी लूसिड होता है, अट्रैक्टिव होता है ना, अपीलिंग, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब आपको लिखते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यूज़ कैची टाइटल, हमेशा जो है एक अट्रैक्टिव टाइटल उसका आप सेलेक्ट करिए, सब हेडिंग सेलेक्ट करिए। राइट कैची फ्रेजेस एंड स्लोगन्स, कुछ अच्छे स्लोगन्स उसके लिए लिखिए, उसकी ब्रांडिंग करने के लिए, उसके जो है एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको उसके स्लोगन्स को यूज़ करना होगा कोई अच्छा सा। ड्रॉ इमेज एंड फिगर्स टू मेक इट आई कैचिंग, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ आई कैचिंग जो है ऐसे आपको अच्छे एक पिक्चर्स या इमेजेस बनाने होते हैं जिससे लोगों को वो अच्छा दिखे और वो कुछ मैसेज गिविंग भी हो, लोगों को एक मैसेज भी दे। यूज़ डिफरेंट फॉन्ट एंड साइजेस, अलग अलग फॉन्ट और साइज़ का यूज़ करिए। यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, कुछ मुहावरे या कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स टाइप के कुछ लैंग्वेज का यूज़ करिए जिससे वो लोगों के बीच में उसकी एक आइडेंटिटी बन सके, तो कुछ ऐसे आपको फिगरेटिव लैंग्वेज का भी यूज़ करना है। सो स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट इफ़ रिक्वायर, अगर उसमें कोई ऑफर्स है या कोई डिस्काउंट अगर आप उसको देते हैं तो दैट विल मीन्स एल्योर द पीपल, वो लोगों को अपनी तरफ एल्योर करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी एडवर्टीजमेंट में रिक्वायर्ड है। फॉर्मेट क्या होगा, अब इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है कि यू हैव टू प्रेजेंट द मैटर अट्रैक्टिवली यूजिंग स्लोगन्स या मेटाफर्स का यूज़ करके आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है। यू कैन यूज ऑल्सो द कैप्शन, आप कैप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। एंड वी कैन ऑल्सो बिगिन विद द नेम ऑफ कंपनी और इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई वो एजुकेशनल कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ फिर उसके नेम के साथ आपको स्टार्ट करना होगा, मतलब टॉपर्स का भरोसा ऐसे कुछ करके जो है ना, इट इज़ द मीन्स फेथ ऑफ टॉपर्स, इस तरह से आपको वहाँ पे स्टार्ट करना होगा। देन यू हैव टू राइट द डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सारे डिटेल्स आपको लिखने होंगे। एंड then you have to write the means if it is educational, अगर वो educational है then you have to write the educational course, वहाँ पे educational course क्या क्या है वो आपको लिखना होगा। then if there is any special offer or discount then you will also write that because it looks attractive and अगर आप इसको वेरियस साइज़ में, फॉन्ट साइज़ में या शेप में उसको उसके अंडर में लिखते हैं तो वो दैट चार्म द people। and at last you have to write the address of advertiser or name of the advertiser if it is not necessary, if it is given in the question then you have to write, otherwise it is not required. So this was the format of non-classified advertisement. So this way we have come to an end of advertisement.